میرا آقا آپ سب کی اس حاضری کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے. خاص طور پر دعا کروں گا میرا آقا ان ڈیوٹی کرنے والے پولیس کے جوانوں افسران رضاکاروں کی اس ڈیوٹی کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے. قرآن کا اعلان سورہ دہر وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے گا اور ان کی پاکیزہ مشروب سے شراب طہورہ سے سقاوت فرمائے گا. قرآن میں کڑے بھی ثابت ہیں. اہل جنت کو کیا بنایا جائے گا؟ چاندی کے کنگن کڑے پہنائے جائیں گے. یہ اہل جنت کا زیور ہے اور یہ ایسا زیور ہے کہ جسے پہن کے آپ پیاسے نہیں رہیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ شراب طہورہ پلائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ وہ شراب نہیں ہے کہ جس کے پینے سے ماں بہن کے رشتے کی پہچان نہ رہتی ہو. یہ وہ شراب ہے کہ جس کے پینے سے انسان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ شراب طہورہ کس کس نے پی؟ آئے شہید محسن نقوی کے 6 مصرے. وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، جو فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پر دعا کے پی، جس کا نشہ حیات کا سامان بن گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان بن گیا. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. آج ہم اس میکدے میں بیٹھے ہیں جس میکدے کا ساقی کوئی عام بندہ نہیں ہے. ساقی کوثر کا بیٹا ہے. نام اس کا عباس ہے اور نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. آج اس عباس کا علم پر عمل ہوگا. اس علم پہ ایک پنجہ ہے. کیا ہے؟ پنجہ. یہ لفظ پنجہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے. میں حسن ابدال مجلس پڑھنے گیا. وہاں گردوارہ صاحب ہے. گردوارے کا نام ہی پنجہ صاحب ہے. ہم سمجھے سکھوں کا کوئی ہوگا ہی. میں نے ایک سکھ سے پوچھا اسلام آباد میں حکیم ہے وہ، اور جب میں جاتا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں بھائی، وہ مجھے سلام نہیں کرتا، وہ مجھے یا علی مدد کہتا ہے. یہ ان کا سلام ہے. مسلمان نہیں ہے وہ. میں نے کہا یہ پنجہ کیا ہے؟ کہ یہ پنجہ ہمارے بابا جی گرو نانک کو مولا علی نے دیا تھا اور ان کے پاس کڑا بھی ہے. وہ کڑا پہنتے ہیں نا. مجھے اپنے مولانا شیعہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو کڑا پہنا ہوا ہے یہ سکھ پہنتے. میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ اہل جنت کا زیور ہے. باقی یہ بات ہے کہ سکھ بھی پہنتے ہیں. میں آپ کو جان دلانا چاہتا ہوں اگر آپ جانیں. میں نے اگر یہ بات ہے کہ یہ سکھ پہنتے تو سکھ فقط کڑا نہیں پہنتے، سکھ تو داڑھی بھی رکھتے. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا یاد رکھیے گا یہ جو تبرکات ہیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے. جنہوں نے اللہ کے نام کو بچایا آج ان کی نشانیاں باقی ہیں. گھروں میں، اذاخانوں میں، امام باڑوں میں، مسجدوں میں، درباروں میں، خانقاہوں پہ کوئی اور ذکر نہیں ہو رہا، فقط حسین کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی فقط شیعہ نہیں کر رہے، سنی شیعہ مل کے کر رہے. ایک ہندو نے کہا تھا کہ جب مسلمان بدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے، آپ کی زبانیں تمام ہوگی انشاءاللہ. جب مسلمان بدعتیں کہہ کر الگ ہو جائیں گے، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. آج عباس کا علم برآمد ہونے والا ہے، جلوس نکلے گا. مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے 25 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. سائن دوڑا کرتے تھے، آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں.
मौला इन्हें शफा देगा। आने वाले ड्यूटी देने वाले जितने मेरे मौला के चाहने वाले सुनिश्चित दाएं बाएं रहते मुझे मिलते रहते लोग, काफी मन्नतें पूरी होती है लोगों की। इसलिए कि ये दरवाजा किसी एक फिरकों को नहीं दिया करता, जो भी दरवाजे पे आ जाता है उसे मिला करता है। अब्बास का कितना बड़ा नाम था, अब्बास कितना बड़ा रुतबा था। अब्बास कौन है? एक शेर पढ़ो मतलब मैं बात खत्म करूं। अब्बास सा दुनिया में कोई शेर नहीं है। अब्बास का नाम लिख के देख लेना। अब्बास सा दुनिया में कोई शेर नहीं है। अब्बास के तो नाम में भी शेर नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल था। अगर शहादत ही पढ़ सकता, फकत अलम बरामद कराना है, इस जुलूस के लेकर भी दूर जाना है। लेकिन मातमी आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अलम वही रहेगा, अलम वही रहेगा। हर घर पे अब्बास का अलम लहरा रहा है। ये अलम हुसैनियत की पहचान है कराता, यही यजीदियत के है फर्क को बताता। कोई चूमता है आकर, कोई जला रहा है, अब्बास अलम तेरा मख्तल से आ रहा है। लेकिन अब्बास का अलम ऐसे नहीं लेके आए हुसैन। अरे मर्शे का एक या दो बार बनूंगा, अलम आ जाएगा। आप जहनी तौर पर तैयार होकर बैठे। जो जो मन्नत है, जो जो आज तक मुराद पूरी नहीं हुई, आपने वो मन्नत जहन में रखना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को कोरोना हो गया, मुझे फोन आया उनका, मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, अब तो डीएसपी हो गए माशाल्लाह। कहने लगे जल्दी साहब मैं शिया नहीं हूँ, मगर मैं पांचों को पंचतन को मानने वाला हूँ। कोरोना ने सबको परेशान कर दिया है, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो कि अगर मेरा कोरोना ठीक हो गया तो मैं मौला अब्बास के अलम पे हाजिरी दूंगा। उसने मुझसे तरीका पूछा, मैंने कम अज कम 1.25 सेर घर में सूजी और चीनी ले आना, तो उसमें सूखा सौदा डाल देना, मेवा डाल देना, हजरत अब्बास की हाजिरी दे देना, कि मुझे को वाक़या सुनाए मौला अब्बास का। मैंने कहा तुम जैसे चाहने वाले थे ना, कोई मन्नत मानी मौला अब्बास की और कहा मौला अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई मैं आपकी हाजिर पकाऊंगा। लेकिन अपना अपना इश्क होता है ना, अहले सुन्नत था। क्या मैंने मन्नत की मानी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई मैं अपने घर में मौला अब्बास की हाजिरी पकाऊंगा। लेकिन मैं मौला से मैंने दुआ मांगी कि जब मेरी मन्नत पूरी हो गई मैं घर में हाजिरी पकाऊंगा, आप मेरे न्याज पे दुआ करने खुद आएंगे। कैसे कैसे इश्क होता है लोगों का, कि मैं रो रो के दुआ कर रहा था। जब मुझे यकीन हो गया मेरी मन्नत पूरी होगी, मौला आएंगे, मैं इत्मीनान से बैठ गया। हफ्ता भी नहीं गुजरा, मेरी मन्नत पूरी हो गई। मेरा टेस्ट हुआ, बिल्कुल नेगेटिव आ गया, कोरोना सोना लग गया, सारा घर परेशान था। और मेरे घर में और किसी को हुआ भी नहीं, दोस्तों में से किसी को नहीं हुआ। मन्नत मैंने मानी थी, यानी ना मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा शहर बचा लिया। देखिए हाजिरी दी, मन्नत किसी मोमिन ने पूरी की, ये उसके मैंने सामने रख उससे कहते तो मन्नत मांगे। मैंने एक मोमिन ने मन्नत मानी थी और उसने कहा मौला आप मेरे घर आइएगा दुआ करने। जब मन्नत पूरी हो गई उसने हाजिरी पकाई, दुआ के लिए इंतजार करने के लिए बैठ गया। बीवी से कहा हाजिर रख दो मेरे मौला आएंगे। शाम हो गई, सूरज डूबने वाला था, मौला नहीं आए। ये कहता मैंने सोचा हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई मौला का आशिक हो, उसके घर चले गए। अभी अहले सुन्नत को मैंने वाकई सुना, मैं उसने मन्नत मानी थी, तू भी मन्नत मान इस तरह। उसने कहा उसने ये मन्नत मानी जिसका वाकया है कि आप मेरे घर आए, पूरी हो गई, शाम हो गई, हाजिरी पक्की रखी, मौला नहीं आए। इसने सोचा हो सकता है किसी और के घर चले गए, मुझसे ज्यादा को मौला का आशिक हो। जब शाम हुई ना, दरवाजा बजा, इसने अपनी बीवी से कहा जाके देखो। बीवी ने जाकर खोल के देखा, वापस आके कहती है तेरे मौला नहीं आए, एक अरब खड़ा हुआ है, अब मेरी हुई उसने। अच्छा उसको बुला लो अंदर। अंदर आ गए, बैठे थे, खड़े हो गए, बैठे, हाजिर रखी।
ये हाजिरी के एहतराम है, खड़े हो गए वो। इसने कहा बहुत देर हो गई है, आप आ गए। तो उन्होंने कहा जो आए थे कि भाई मुझे पता चला तेरे घर हजरत अब्बास की हाजिरी है, मैं आ गया हूँ, अब मुझे कहीं और भी जाना है, तो दुआ कर, हाजिरी शुरू कर। उसने कहा आप आ गए, आप खुद ही दुआ करें। उन्होंने दुआ की, मुंह के अंदर कुछ पढ़ा, अल्लाह की हमद की, मोहम्मद को दुरूद पढ़ा, कहा तेरी नियाज हो गई तो शुरू कर। उसने कहा शुरू तो मैं कर दूंगा, मगर आज पहली दफा मैंने देखा है हर जगह नियाज होती है, हम सारे सुन्नी से भाई नियाज करते हैं, लेकिन जब दुआ करते हैं तो दुआ के लिए हाथों को उठाते हैं। अरे भाई आपने कैसे दुआ की है, आपके हाथ उठे ही नहीं है, आपके हाथ आबा के अंदर ही है, सीधे खड़े आप। उसने कहा मुसाफिर ने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे हाथ नहीं है। अगर जाओ हाय कह दो, बोले तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, तो मेरे हाथ नहीं है। इसने पूछा आपके हाथ कहाँ गए? कहा मैं सकीना के लिए पानी लेने गया, मैं सकीना के लिए पानी लेने गया था, मैं तेरा मौला अब्बास हूँ, मैं मोमिन पैरों में गिर गया, मौला हम गुनहगारों के घर भी आप आते हैं। बस सुन लो, जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, रेती पे गिरे शह के अलमदार के बाजू, थर्राने लगे सैयद अबरार के बाजू। शादी रंग उड़ गया, तस्वीर अलम हो गए शब्बीर, सदमा ये हुआ जोर से खब हो गए शब्बीर। शादी ये बहुत कदीमी जुलूस है। अज़ादारो अकबर से कहा कर दो गरीबा को दोबारा, हम सोग में है कत्ल हुआ शेर हमारा, आशिक मेरे बच्चों का जमाने से सिधारा, फरमा के हजरत ने अमामे को उतारा, आफत में फंसी पानी की मोहताज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीमा सकीना। एक बात की और रहमत है, हजरत को संभाले हुए दरिया से जो लाए, हजरत को संभाले हुए, अकबर ने संभाला हुआ, हजरत को संभाले हुए दरिया से जो लाए, अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए, अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए। अज़ादारों मेरे साथ मिलकर दुआ करो, अरे भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए, भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए। हुसैन पहुंचे लाशे पे, अब्बास का सर उठा के अपने दालू पे रखा, कहा भैया एक हसरत है मेरी, मौला हुक्म दीजिए, मगर जरा सोच के फरमाइएगा, इसलिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब मेरे दोनों बाजू नहीं रहे, कहीं बाजुओं से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मौला बताइए। हुसैन ने कहा अब्बास आज तक मुझे आका कहा है, एक दफा मुझे भाई कह के बुला दिया। अब्बास ने कहा आपको भाई कह दूंगा, मदीने में मेरी माँ उम्मुल बनीन नाराज हो गई, जंगल से आवाज आई अब्बास तेरी माँ उम्मुल बनीन के जिम्मा फाटे पर चढ़ा लेती है, मुझे भाई का आलम आने वाला है। एक मरतबा क्या हुआ, अज़ादारो हजरत भरी निगाह से देखा इमाम ने, अरे भाई का दम निकल गया, भाई के सामने तीन मरतबा अब्बास ने कहा हाय मेरा गरीब भैया हुसैन, हाय मेरा प्यासा भैया हुसैन। अगर अलम को उठाया हुसैन ने, अलम ले आइए बेटारे, अलम मुझे करवाइए, खड़े न करवा दीजिएगा, अलम को उठाया। अज़ादारो हुसैन अलम लेके आए, सकीना ने अलम को देखा, बच्चों मेरे चचा आ गए हैं, मगर अलम आया, बीवियों ने मातम किया, वाह अब्बास वाह अब्बास। अज़ादारो ज़ैनब ने कहा बीवियों, ज़ैनब अपने अल्फाज़ वापस लेती है, मैंने तुम्हारे पर्दे की ज़मानत दी थी, मेरा अलम आया है अब्बास।